हेलो फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिस्कस किए हैं उनमें जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्लिप, नेगेटिव स्लिप, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन in the suction and delivery pipe due to acceleration of the piston। तो जो हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है उस मूवमेंट की वजह से हमारे जो वाटर है वो उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर हेड डेवलप होता है, जिसके कारण से वाटर आपका डिलीवरी हाइट एक हाइट पर पहुंच पाता है, राइट। बट जब वो पिस्टन का मूवमेंट होता है तो पिस्टन मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो at the starting the velocity will be zero. At the starting, that means we can consider starting at inner dead center, the velocity at that point zero, and the velocity at outer dead center again zero, right? We have a diagram also. Let us understand with this diagram. We can simply assume that the velocity at this point is starting of the piston motion, and at this point at the end of this piston motion, or we can say at the starting point of this crank over at point A, and end point of the crank is C, right? At A and C position, or we can say that is inner dead center and outer dead center, the velocity of this piston is zero. So simply we can understand that if the velocity at this point 0 and this point 0, we get the maximum velocity at the center, or we can say at the point B of this crank motion. If the velocity at point B is maximum, so we can say then when crank is moving from point A to B, the acceleration we can consider is as acceleration. So piston will move from this zero velocity to maximum velocity. That is we can say that is the velocity here 0 to maximum. Hence this motion is considered as a acceleration, right? And when the crank is moved from B to C, velocity is maximum to again 0. Piston position, in this case, piston will move from the center to at the outer dead center. So again, we can consider it as a retardation. So simply, first half of the motion of the piston is called acceleration, and second half of the piston of motion, that is retardation. All right. So this motion of the piston gives the value of acceleration head. Okay. Now acceleration head, we have to determine the value of acceleration head, right? Variation of velocity and acceleration in the suction and delivery pipe due to acceleration of the piston. So we can say जब पिस्टन का मूवमेंट होगा उस मूवमेंट की वजह से हमारे सक्शन और डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेरिएशन होगा वो हमको डिटरमाइन करना है, राइट। सो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारा L is the capital L is the length of that crank, and R is the radius of the crank, and हम L upon R के रेशियो को N कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ भी समझ सकते हैं, हमने लिखा हुआ है the ratio of length of connecting rod to radius of crank, right, that is L upon R। अगर हमारे इस N की वैल्यू अगर लार्ज हो
एन की वैल्यू लार्ज कब होगी? जब एल लार्ज होगा। एल मीन्स दैट इज द कनेक्टिंग रॉड लेंथ अगर ज्यादा होगी, एंड आर हमारा जब कम होगा, तो जब एल ज्यादा हो और आर कम हो तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब एन की वैल्यू ज्यादा होती है और एल की वैल्यू ज्यादा होती, आर की वैल्यू कम होती है, तो उस तरह में जब हमें मोशन ऑपरेट होता है पिस्टन का, वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपली हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी स्टार्ट oscillating about a point, about a mean point, right? So here we can say, here हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो पिस्टन हमारा है, इस पॉइंट के अबाउट सिंपली हमारा पिस्टन जो हमारा है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड हो रही, जीरो वेलोसिटी अटेंड हो रही, देन अगेन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड हो रही है, एंड जीरो वेलोसिटी यहाँ अटेंड हो रही। तो इस तरह की मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ देखें कि पिस्टन हमारा जो एक्स डिस्टेंस कवर करता है, वो हमारा जब क्रैंक हमारी पॉइंट ए से ई तक पहुंच जाती है, यानी एंगल थीटा कवर करती है, तो पिस्टन हमारा यहाँ पर क्रैंक भी हमारी, ये अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो हमारी जो एक्स डिस्टेंस मूव अचीव हो रही है, ये जो एक्स डिस्टेंस है वो इस एक्स डिस्टेंस के आपके बराबर होगी, राइट। एंड दैट इज द रेडियस ऑफ दिस क्रैंक, एंड थीटा इज द एंगल मूव बाय द क्रैंक फ्रॉम देयर इनिशियल पोजिशन, राइट। सो हियर वी कैन सी ऑल्सो, if theta is the angle turned by the crank in the radians in time t, and that is equal to omega t. Omega t, as we know, simple जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, that is distance is equal to speed into time. यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुई है वो एंगल में हुई है, तो हम कह सकते हैं दिस डिस्टेंस इक्वल टू थीटा, एंड जो हमारे पास स्पीड है दैट इज ओमेगा एंड टाइम इज टी, राइट। तो सिंपली वी कैन से दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो यहां पर हम देख सकते हैं द डिस्टेंस एक्स ट्रेवल बाय द पिस्टन इज गिवन एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ए एफ। तो यहां पर जो हमारे पास डायग्राम में दिख रहा है, जो एक्स है वो डिस्टेंस क्या है, ए एफ की डिस्टेंस है। तो अगर ए एफ की डिस्टेंस को हम निकालना, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम यहां देख सकते हैं, हमने इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है दिस ए एफ इज इक्वल टू ए ओ माइनस एफ ओ। तो ए ओ माइनस एफ ओ को हम यहां से समझ भी सकते हैं, ए ओ हमारी ये टोटल रेडियस है एंड एफ ओ इज ये रेडियस है हमारी, ठीक है। तो अगर मैं ए ओ की वैल्यू को देखूं दैट इज इक्वल टू आर, एंड एफ ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इस तरह की जो वैल्यूज हमारी निकल के आ रही हैं, उन वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू आर, एफ ओ इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दें दैट इज ओमेगा टी, राइट। नाउ लुक एट हियर, द वेलोसिटी of the piston is obtained by differentiating equation with respect to t. तो हमारे पास velocity of piston मिल जाएगी। तो velocity of piston we can say that is equal to dx upon dt. तो अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करें with respect to time dt, तो हमारे पास जो cos ओमेगा t है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी that is sin ओमेगा t, that is sin ओमेगा t and ओमेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दैट इज ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हम अगर देखें तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू सिलेंडर पर सेकेंड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप पर सेकेंड। तो जितना हमारा सिलेंडर में वाटर फ्लो होगा उतना ही वाटर हमारा पाइप में फ्लो होगा। तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इनटू एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज वी कैपिटल वी इनटू कैपिटल ए, एंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप इनटू एरिया ऑफ पाइप। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप दैट इज स्मॉल v एंड एरिया ऑफ पाइप इज स्मॉल a।
यहां से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप निकल के, क्योंकि अगर हमें एसिलेशन पाइप में निकालना है तो हमें वेलोसिटी को डिटरमाइन करना होगा, वेलोसिटी इन पाइप डिटरमाइन करना होगा। तो यहां से हमने क्या किया कि कैपिटल स्मॉल वी की वैल्यू को निकालने के लिए हमने कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू वी, और वी हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, जो वी की वैल्यू है दैट इज ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, और इस वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया। ओके, नाउ हमें एसिलेशन निकालना है, एसिलेशन ऑफ वाटर इन पाइप। तो अगर मैं एसिलेशन निकालना चाहता हूं तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास जो एसिलेशन ऑफ वाटर इन द पाइप है डिटरमाइन हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो डीवी अपॉन डी टी कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है, दैट इज कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी। राइट, अब हमें निकालना क्या है, दैट इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेशन, ये निकालना है। राइट, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना चाहता हूं ड्यू टू द एक्सेलरेशन, सो दैट इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द वाटर अपॉन एरिया ऑफ द पाइप। क्योंकि हमारे पास फाइनली हमको क्या निकालना है कि जो प्रेशर हेड डेवलप हुआ है पाइप के अंदर वो कितना है ड्यू टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर हेड को निकालना चाहते हैं तो हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। राइट, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले फोर्स की वैल्यू को निकाला, एंड फोर्स इक्वल टू होता है दैट इज मास ऑफ वाटर इन द पाइप इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द वाटर इन द पाइप। एक्सीलरेशन ऑफ द वाटर इन द पाइप हम निकाल चुके हैं पहले ही, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी। इस वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया, एंड मास ऑफ वाटर इन द पाइप, तो मास ऑफ वाटर इन द पाइप दैट इज रो ए एल के बराबर हो जाएगा। यहां से हम समझ भी सकते हैं कि मास ऑफ वाटर पाइप इन द दैट इज मास ऑफ वाटर इन द पाइप इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप। तो यहां से हम लोगों ने पाइप की, चूंकि हमारा एरिया है स्मॉल ए और लेंथ है स्मॉल एल, तो दैट इज इक्वल टू रो स्मॉल ए इंटू स्मॉल एल। इस वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया, तो जिससे हमारा निकल के आ गया दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द वाटर in the pipe. Now we have to calculate the intensity of pressure due to acceleration. So intensity of pressure simply we can calculate, that is equal to force required to accelerate the water upon area of the pipe. We have determined the value of force required, that is equal to this much amount, and area of the pipe, that is small a. हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस स्मॉल ए विल बी रिप्लेस्ड, देन दिस वैल्यू विल बी अचीव इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट। राइट, सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर हेड ड्यू टू द एक्सेलरेशन, pressure head, simply we know that the value of pressure is equal to rho gh. Rho g is what? That is weight density of liquid. So simply we can say that is if HA, we have to determine the value of HA, that is the pressure head due to the acceleration. So we can simply calculate its HA is equal to P upon rho g simple. So P is what? That is intensity of pressure due to the acceleration, and rho g is what? That is weight density of liquid. हमने P की वैल्यू को पहले निकाला हुआ है, वो यहाँ हमने पुट कर दिया, एंड rho g से डिवाइड करते हैं तो हमें ये वैल्यू अचीव होती है। तो अब हमको मिल गई वैल्यू प्रेशर हेड ड्यू टू द एक्सेलरेशन। राइट, तो सिंपली अगर मैं अगर सक्शन साइड पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो मैं इसको HAS से रिप्रेजेंट करता हूं, और जब डिलीवरी साइड पर इसको कैलकुलेट करता हूं तो उसको मैं HAD से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो HAS और HAD की वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं, इस वैल्यू को निकालता हूं, तो ये बराबर हो जाएगी हमारी, जब HAS का सिंबल यूज करेंगे तो यहां पर LS और AS यूज करेंगे, ये आपकी सक्शन साइड की लेंथ और एक्सेलरेशन हो जाएगा। HAD का जब हम यूज करेंगे दैट इज LD अपॉन AD, सिंपल यही डिफरेंस दोनों में आएगा। राइट, और अगर मैं इस चीज को समझूं तो यहां पर जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू अचीव होती है, दैट इज वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन हेड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0।
तो अगर मैं सक्शन साइड में देखूं यहाँ पर, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ पर cos है इसकी वैल्यू, cos की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हमारे पास वैल्यू HA की हो जाएगी, वो इतनी मिल रही है हमको। when theta is equal to 0, when theta is equal to 90, HA is equal to 0, सिंपल, बिकॉज cos है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मैं 180 रखता हूं तो ये हमारी माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू माइनस दिस मच अमाउंट, राइट। तो थीटा जो हमारा है बेसिकली क्या है, क्रैंक रोटेशन है। तो क्रैंक रोटेशन 0 यानी स्टार्टिंग पॉइंट, 90 यानी मिड पॉइंट, एंड अगेन दैट इज 180 डिग्री, दैट इज एंड पॉइंट, सिंपल। तो क्रैंक हमारी 180 डिग्री जब रोटेट कर जा रही है इस तरह, तो 180 डिग्री रोटेशन में हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन में हमारे पास जो देख रहे हैं आप लोग कि ये हमारा दैट इज सिंपल थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90, तो वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी। एक्सेलरेशन हेड की वैल्यू स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी, देन 0 हो जाएगी, देन क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज, एंड अगर ये वैल्यू नेगेटिव में जा रही दैट इज रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन हेड और रिटार्डेशन हेड की वैल्यू हमको अचीव हो जाती है सिंपली, राइट। अगर मैं इसके आगे देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेड, मैक्सिमम प्रेशर हेड ड्यू टू द एक्सेलरेशन जो हमको अचीव होता है दैट इज L अपॉन G इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a ओमेगा स्क्वायर R, राइट। अगर मैं यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑन फ्रिक्शन इन द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, राइट। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है। सिंपली अगर मैं यहां पर सक्शन के लिए इसको लिखूंगा तो HAS मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहां पर LS अपॉन AS हो जाएगा। अगर मैं डिलीवरी पाइप के लिए निकालता हूं तो HAD निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू LD अपॉन AD। तो इस तरह हमें ये वैल्यूज अचीव हो जाएंगी, राइट। अगर मैं इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू को देखना चाहता हूं, फ्रिक्शन की वैल्यू सक्शन एंड डिलीवरी पाइप में, तो हमें पास फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज HF इज इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, जो कि हमें यहां दिख रहा है। तो यहां पर हमको जो V की वैल्यू है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज हम निकाल चुके हैं पहले कि दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द सेक्शन एंड डिलीवरी पाइप, दैट इज कैपिटल A अपॉन स्मॉल a ओमेगा R साइन ओमेगा t, ऑलराइट। इस वैल्यू को अगर मैं यहां रख देता हूं तो हमारे पास HF की वैल्यू अचीव हो जाती है। और HF दैट इज द फ्रिक्शनल हेड की वैल्यू सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप के लिए अलग अलग हो जाएगी सिंपली। तो सक्शन पाइप के लिए जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सक्शन पाइप के लिए वैल्यू हो जाएगी दिस मच अमाउंट एंड डिलीवरी पाइप के लिए वैल्यू दिस मच अमाउंट। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, जब L है तो LS रख देंगे, जब D है तो DS रख देंगे, ये सक्शन पाइप के लिए हो जाएगा। और अगर डिलीवरी पाइप के लिए निकालते हैं दैट इज LD अपॉन DD, ये वैल्यू यूज हो जाएगी। तो जो फ्रिक्शनल हेड की वैल्यू होगी जब थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर साइन का फंक्शन है हमारे पास, तो साइन की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो HF की वैल्यू आप देख रहे हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो HF इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, राइट। तो यानी फ्रिक्शन की वैल्यू जब स्टार्टिंग पिस्टन की होगी तो उसमें 0 रहेगी, ऑब्वियसली हम समझ भी सकते हैं उसको प्रैक्टिकली। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी HF इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट, दैट मीन्स वी कैन से फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम एट द व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 एंड अगेन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 द फ्रिक्शन विल बी अगेन 0। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अगर मैं फ्रिक्शनल आगे चल के मैं इसके फ्रिक्शन के ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा तो हम देखेंगे कि ये शुरुआत में मैक्सिमम 0 रहते हैं, बीच में मैक्सिमम हो जाते हैं, देन अगेन 0 हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।